Good morning, students. We will start our new video for 11th class. Now, we will start our new topic, the story of human evolution, modern human beings. Before we started our new topic, we will revise some topics about we have learned. First, the thing that the who was the Homo and the hominids and the hominoids, and the Homo bergolicis and the Homo neanderthalensis and the Homo habilis, Homo erectus, and the Homo sapiens. We will summarize this. And the first thing is the Homo is a Latin word meaning man. And although there were women as well as scientists distinguish among several types of Homo, means different subparts of the Homo. We have subparts of the Homo, and the name of the first part of the Homo is the Homo habilis. Okay, the Homo habilis, the special quality in Homo habilis is the tool maker. They have the special what will we say special quality in them, that they make the tool so purified and so perfectly. Now Homo erectus, now the Homo erectus who was the upright man. Okay, and now the Homo sapiens were the wiser or thinking man. We would say that ये बहुत ज़्यादा चिंतनशील प्राणी हुआ करते थे. So the fossils of Homo habilis have been discovered at Omo and Ethiopia and Olduvai or George in Tanzania. So the fossils are found in different parts of the earth. So the different types of the Homo habilis, Homo erectus, and the Homo sapiens, which will become the human or the modern human. And the last यही लोग आगे चलकर आधुनिक मानव का जो रूप, आज जो आधुनिक मानव है उसका रूप उन्होंने लिया है. सो नाउ वी लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स. किस तरह से मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हमें जानकारी मिली है, कैसे ये इनका प्रादुर्भाव हुआ है. तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा घूमते हैं कि किस तरह से आधुनिक मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है. ठीक है. सो यू हैव अ चार्ट इन योर book, so look at the book, the chart of the book, and you see that the book with the notice that the earliest evidence for Homo sapiens has been found in different parts of Africa. जो होमो के जो different parts हैं या different सब parts कहाँ मिले हमें, ये सारे parts आपको मिले हैं अफ्रीका में. सो अफ्रीका का जो पार्ट है, उस अफ्रीका के पार्ट में आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग होमो की जो प्रजाति है, होमो की जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, different प्रजातियां वहाँ पर different पार्ट में मिली है. सो द इशू ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन हैज़ बीन मच डिबेटेड. मेन बात माइंड में घूमती है. सो व्हाट इज़ द प्लेस, व्हाट इज़ द मेन प्लेस of the origin of the human, modern human. So we have to say that the two things or the two ideas which was come out from the debating, and we can say that the summarize of the conclusion of that debating, that we have the two model. First is the replacement model and second is the regional continuity model. You have to look at it, the screen. आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हो that we have the two opinion concerning the origin of modern human. मॉडर्न जो आधुनिक मानव है उसके उद्भव के हम के विषय में दो मत प्रचलित हैं, जिसमें पहला आपका आता है रिप्लेसमेंट मॉडल एंड दूसरा आपका आता है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल. अब इसको मीनिंग समझना है तो सबसे पहले जो आप इस चार्ट में इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, ये दो डिफरेंट पिक्चर्स आपको नज़र आ रही है, जिसमें एक तरफ लिखा है रिप्लेसमेंट मॉडल और दूसरी तरफ लिखा आपका रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल. सो what is the meaning of replacement model and what is the meaning of regional continuity model? The replacement model visualize the complete replacement everywhere all over older form of humans with modern humans. रिप्लेसमेंट मॉडल का मीनिंग क्या आ रहा है कि ये जो रिप्लेसमेंट मॉडल का मतलब है कि जो प्राचीन मानव जो थे, ठीक है ना, वो किसी एक जगह पर, है ना, किसी एक जगह पर उनका बर्थ हुआ है या एक जगह पर उनका ओरिजिन हुआ है और उसके बाद वो धीरे धीरे
या माइग्रेट होकर वो धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर पहुंच गए। तो 3 कॉन्टिनेंट के आपको नाम दिए जा रहे हैं यहाँ पर, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। मीन्स किसी एक जगह पर उनका बर्थ हुआ है या ओरिजिन हुआ है, और उसके बाद वो अलग अलग इन तीनों जगहों पर माइग्रेट या 2 जगहों पर माइग्रेट हुए हैं। ठीक है। So those who suggested this argue that the enormous similarities among us modern humans is due to their descents from a population that originated in a single region। देख रहे हो आप, इसके नीचे लिखा हुआ आपका कि इन सब को मानने का, इन सब के बारे में कि एक मत रखने का एक बात यह है कि क्योंकि इनको क्यों कहा गया है, इनमें सिमिलैरिटीज़ मिली है। इनका जो जेनेटिक ऑर्डर है या फिर इनका जो आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन है, या उनमें जो बनावट के आधार पर उनको देखा जाए तो वो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, चाहे वो अलग अलग जगह पर चले गए हैं, लेकिन उनके जो बर्थ करने का तरीका या उनके हंटिंग करने का तरीका या जो भी उनके बारे में मिली है जानकारी, उससे लगता है कि वो सिंगल ओरिजिन होगा, कि एक प्रतिस्थापन मॉडल है कि एक जगह पर उनका पैदा होना और फिर अलग अलग जगहों पर उन्हीं के वंशजों का अलग अलग जगहों पर पहुंच जाना। नेक्स्ट आपका आता है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल का मीनिंग होता है कि इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में इनका बर्थ हुआ है अलग अलग, ये डिफरेंट इनका जो प्रजाति आप बोल सकते हो, जैसे हमने बोला था होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस, और उसके साथ साथ हमने और बताए थे होमो हाइडेलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेसिस। मीन्स जो इस तरह से प्लेसेस के अकॉर्डिंग उनके नाम जो रखे गए हैं वो इसी आधार पर कि उनका जो बर्थ है या उनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट प्लेस पर हुआ है। इसीलिए इसको रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल बताया गया है कि ये पहले तो अलग अलग जगहों पर इनका ओरिजिन है, और फिर ये लोग क्या हुए, आपस में घूमते हुए किधर आ गए, एक दूसरे के इधर भी शायद आ गए, लेकिन इनमें समानता नहीं है, इसमें सिमिलैरिटीज़ नहीं है, इनमें डिससिमिलैरिटीज़ है। ठीक है। आपका जो ये जो रिप्लेसमेंट मॉडल और रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल है, सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इससे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिप्लेसमेंट मॉडल एंड द रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल for 4 marks or 8 marks. Okay, so you have to write these things and make the picture also here, same picture also there. So first thing is that the regional single region origin, आपको जो पिक्चर बनानी है उस तरह की रिप्लेसमेंट मॉडल की पिक्चर आपको शो करना है। एंड देन द फर्स्ट डिफरेंसेस वाज ह्यूमंस ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका। द स्कॉलर सेज दैट द ह्यूमंस ओरिजिनेटेड ओनली इन अफ्रीका, जो अफ्रीका है वहीं पर उनका बर्थ प्लेस हुआ है, वहीं उनका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट, आर्किएक्स ह्यूमंस वर रिप्लेस्ड by modern humans. Archaex means 360 million years ago. 360 साल पहले आर्किएक्स जो ह्यूमन वर्ड थे, जो पुरातन मनुष्य थे, सो दे वर रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न ह्यूमन। उन्हीं वो ही रिप्लेस्ड हुए हैं किसके, मॉडर्न ह्यूमन के रूप में। नाउ द जेनेटिक एंड द एनाटॉमिकल ह्यूमन, द होमोजेनेटिक्स सपोर्ट दिस व्यू। मतलब उनकी जो अंदर शारीरिक सजाती था, मीन उनके जो कैरेक्टर्स थे या जो क्वालिटी थी, उनके अंदर जो क्वालिटी थी और जो उनकी जेनेटिक, उनका जो कंस्ट्रक्शंस था वो सब बिल्कुल सेम था। एंड द सिमिलैरिटी इज़ ड्यू टू ओरिजिन फ्रॉम अ सिंगल रीजन। मीन्स किसी एक जगह पर आप देखते हो, जनरली हम देखते हैं कि अफ्रीकन्स जो होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, है ना, और हम अगर देखते हैं जो अमेरिकन्स होते हैं वो उनका दिखने में कैसा होता है। तो ये डिफरेंस किस आधार पर है, ये वहाँ के क्लाइमेट के आधार पर है और एक ही जगह पर पैदा होने के आधार पर है। ठीक है ना, तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि सिमिलैरिटी इज़ ड्यू टू ऑरिजिन फ्रॉम अ सिंगल रीजन। नाउ द मल्टी रीजन ऑरिजिन मीन्स यहाँ पर क्या है, आपका रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टी रीजनल ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, द ह्यूमंस इवॉल्व इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वी वुड से अबाउट दैट कि हाँ, जो ह्यूमंस हैं उनका ओरिजिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हुआ है। जैसे 3 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड या 3 कॉन्टिनेंट्स के नेम आपको दिए गए हैं, उन 3 कॉन्टिनेंट्स के नेम में आप देख सकते हैं यूरोप, अफ्रीका और एशिया। तो इन तीनों जगहों पर ह्यूमन का ओरिजिन हुआ है, वो ऐसा मानते हैं, और उसके बाद ये लोग आपस में इधर एक दूसरे के इधर इन्होंने मूव किया होगा। नाउ देयर इज़ रीजनल डिफरेंसेस इन द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस। जो उनमें जो डिफरेंस है, जो उनमें आधुनिक मनुष्य की सुविधाओं में क्षेत्रीय अंतर है। क्षेत्रीय अंतर का मतलब
जैसे उनके बोलने का तरीका या उनके रहने का ढंग या उनका जो खुद का बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो साउथ के लोग होते हैं वो अलग हैं, अफ्रीकन जो हम देख रहे हैं जनरली, और जो अमेरिकन हैं उसके बारे में हमने भी पहले बात की थी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें लगता है। नाउ डिससिमिलैरिटीज आर ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन होमो हाइडेलबर्गेंसिस एंड द होमो निएंडरथैलेसिस। हमने देखा था कि जो होमो हाइडेलबर्गेंसिस और जो होमो निएंडरथैलेसिस जो थे, जो ये एक होमो की ही क्या है, आप बोल सकते हो ये होमो का ही एक सब पार्ट कह सकते हो उनको। और इनको भी कैटेगराइज किसके आधार पर किया गया है, इनको कैटेगराइज किया गया इनकी प्लेस के आधार, पर्टिकुलर प्लेस के आधार पर। जो फर्स्ट फॉसिल्स जहाँ मिले हैं उनके आधार पर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इनमें जो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा है वो डिफरेंस क्या रहा है कि इनका जो निएंडरथैलेसिस जो है वो यूरोप में मिले हैं, और कुछ पार्ट इनका सेंट्रल एशिया में मिला है। तो अलग अलग जगहों पर आप बोल सकते हो कि इनके पार्ट्स मिले हैं। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि ये शायद रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल में रहे होंगे। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस जो अर्ली ह्यूमंस थे 1,60,000 वर्ष पूर्व जो ह्यूमंस थे, हाउ दे स्पेंड देयर लाइवलीहुड, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने जो रहने का तरीका है वो निकाला है। तो अर्ली ह्यूमंस जो है वो कैसे रहते थे, वो सब जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जानने की कोशिश की ड्यू टू द अकॉर्डिंग टू द फॉसिल्स के आधार पर इनको जानने की इन्होंने कोशिश की थी कि किस तरह से वो अपना रूटीन जो लाइफ था वो कैसे स्पेंड किया करते थे और कहाँ किस तरह से वो मूवमेंट करते थे। सो जो अर्ली ह्यूमंस हैं, वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, तो अर्ली ह्यूमंस वुड हैव ऑब्टेन फूड थ्रू अ नंबर ऑफ वेज, different ways. The first is gathering, now second is hunting, third is scavenging and the fourth is fishing. Gathering का मीनिंग होता है आपका कोई चीज़ को इकट्ठा करना, संग्रहण करना। ओके, नाउ हंटिंग का मीन्स समझते हैं आप, शिकार करना। स्कैवेंजिंग का मीनिंग होता है जनरली किसी के द्वारा छोड़ी गई चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, that is called the scavenging. Next, fishing, you know all about that, what is the fishing. Now the such as gathering, hunting, scavenging and fishing. So gathering would involve collecting plant food such as seeds. Now you look at the picture, sorry. In gathering you can see that the how the people collect plant foods and seeds, nuts, berries, fruits and tubers. मीन्स उनको जो भी मिलता था वो उनको क्या करते थे, उनको इकट्ठा करके रखते थे। उन इकट्ठा करने में उनके पास क्या, या तो प्लांट के प्लांट फूड्स होते थे, और उसमें प्लांट फूड में आपको क्या मिल सकते हैं, सीड्स, आपको बीज मिलेंगे, नट्स मिलेंगे, बेरीज मिलेंगे, है ना, फ्रूट्स मिलेंगे, और कुछ ट्यूबर्स मिल सकती हैं। तो जो गैदरिंग का जो इनका वर्क था, गैदरिंग वॉज अ प्रैक्टिस्ड एज जनरली अज्यूम्ड रादर देन कंक्लूसिवली इस्टेब्लिश्ड। मीन्स इनकी जो ये आदत थी इनको इकट्ठा करके रखने की, ये उनकी अच्छी आदत के रूप में मान सकते हैं हम इसको। ओके, नाउ while we get a fair amount of fossils, bones, fossilized plants, remains are relatively rare. हमें इनके साक्ष्य कम मिले हैं, लेकिन हमें इनके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत जो भी मिली वो इनके बारे में ही हमें मिली है। सो नाउ हंटिंग, अर्ली ह्यूमंस स्कैवेंजर्स और हंटिंग, यू ऑलवेज नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हंटिंग। हंटिंग मीन्स शिकार करना। तो शिकार में किस तरह से वो लोग शिकार करते थे और शिकार करके कैसे वो उस शिकार जो मेंस थे वो क्या करते थे, शिकार करके ले जाते थे, और जो वुमेन्स थी वो जैसे बीज को कलेक्ट करना या दूसरा इस तरह का काम, कलेक्टिंग का काम, गैदरिंग का काम वुमेन किया करती थी। सो इन रिसेंट ईयर द टर्म हंटिंग हैज़ बीन अंडर द डिस्कशन बाय स्कॉलर्स. So it is being suggested that the early hominids scavenged or foraged. What is the meaning of scavenged or foraged? You have to see that the picture. In the picture, you can see that some persons who was gathering toward around the dead body of the animal, and they scratch something from the
डेड एनिमल, वो कुछ स्क्रैच कर रहे हैं उस एनिमल से और फिर उसको वो क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं. सो अर्ली ह्यूमन स्कैवेज्ड or foraged for meat of animal that had died or had killed by other predators. अदर प्रिडेटर का मतलब होता है यहाँ पर जो स्कैवेंजिंग का मीनिंग आ रहा है, मीन्स किसी और के द्वारा, चाहे वो किसी एनिमल, बड़े एनिमल के द्वारा वो किसी उसको मारा गया हो या किसी और ने, शिकारी ने मारा हो और उसे छोड़कर चला गया हो, तब भी आप इसको क्या कह सकते हैं, स्कैवेंजिंग कहेंगे कि वो उसका बचा हुआ उठाकर वो लाते थे. और ये काम कब हुआ था, मतलब कब करते थे, ये 500,000 ईयर्स अगो ये आपका होता था. एंड हंटिंग वॉज प्लान्ड, हंटिंग होती थी, इनकी प्लानिंग करते ये लोग, हंटिंग करते थे एक साथ ग्रुप बनाकर, ग्रुप में जाते, हंटिंग करने के लिए जाते थे. और इस तरह के जो हंटिंग एंड बुचरी एट लार्ज मैमल्स कम्स फ्रॉम टू साइड्स. From the two places we found the fossils of this type. So the first was the box grove in southern England. इसका आपको कहाँ मिला है, बॉक्स ग्रोव जो होते हैं सदर्न, इस तरह से आप पिक्चर में देखेंगे कि किस तरह के अलग अलग तरह के ये लोग किस तरह से मारते थे और बचा हुआ ये लोग लेते थे. ठीक है, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरह से शिकार भी करते थे, हंटिंग किस तरह से ग्रुप में किया करते थे हंटिंग. एंड हंटिंग प्रॉब्ली बिगिन बाय अबाउट 500 years ago. And now we have to find some fossils from that places. First box grove in southern England. ठीक है, यहाँ से हमें इनके साक्ष्य मिले हैं या प्रूफ मिले हैं. एंड नाउ शॉनिंजन इन जर्मनी में भी इनके साक्ष्य मिले हैं. एंड डॉल्नी वॉस्टनस इज शेज रिपब्लिक में भी इनकी कुछ फॉसिल्स मिले हैं. सो वी फाउंड द different parts from the different places. And in your exams the examiner can ask you about the places in the map, so you have to fill these places. First you can see that the box grove in the United Kingdom, you have to see that the box grove is where. And the in Germany you can see that the Schöningen, the place, and the third place Dolny Westernice in Czech Republic. Okay, so you have to learn these things also. So from about 35,000 years ago, there is evidence of planned hunting from some European cities. These are the European cities, and some cities such as Dolny Westernice, and which was near a river. It's from near a river and seem to have been deliberately chosen by early people. You know that the early people know the place where where they can found easily, they can found the water from easily. So they live near the water place or the river. Okay, now the first thing in our mind, did men and women have different roles in gathering? तो हमारे माइंड में एक बात भी घूमती है कि क्यों अलग अलग काम करते थे शायद ये. स्कैवेंजिंग, हंटिंग एंड फिशिंग, सारा काम डिफरेंट. शायद हंटिंग का काम मैन कर रहा हो, गैदरिंग का काम वुमेन कर रहा हो. सो वी डू नॉट रियली नो. टुडे वी फाइंड सोसाइटीज दैट लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, and where women and men undertake a range of different activities. But as we will see later in this chapter, it's not always possible to suggest parallels with the past. So thank you for the